یہ تو ایک پیٹرول بھرا گھر ہے، یہاں کسی بھی وقت آگ بھڑک سکتی ہے۔ سینٹرل کیلیفورنیا میں ایک جیل ہے، جنگ کے دہانے پر دو گینگ گورے اور جنوبی میکسیکن غصے میں بھرے ہتھیاروں کی تیاری اور حملے کے منصوبے بنانے میں مصروف، جنگ پر آمادہ۔ آفیسرز ان کو کنٹرول کرنے میں کوشاں ہیں۔ کوٹری نمبر 2171 کھولو، کوٹری نمبر 2171 کھولو۔ یہ جیل تو خطرناک حد تک بھری ہوئی ہے۔ 120 تشدد پر آمادہ مجرم اس ایک کمرے میں رہتے ہیں اور ان کو الگ رکھنے کے لیے بیچ میں کوئی دیوار بھی نہیں ہے۔ او مین، یہاں تو بہت بھیڑ ہے۔ لگتا ہے شراب کی ریس کی جنگ یہیں سے شروع ہوگی۔ سلیناز ویلی کی سرکاری جیل میں خوش آمدید۔ کیلیفورنیا کی ایک بہت ہی خطرناک جیل جو ریاست کی سب سے زیادہ دہشت ناک جگہ ہے۔ ایک قیدی زخمی ہو گیا ہے۔ وہ ایک گورا ہے۔ اس پر حملہ کرنے والے 2 ہسپانوی ہیں۔ انہوں نے حملے کے لیے بہترین وقت کا انتظار کیا۔ کچھ افسر ادھر ادھر ٹہل رہے تھے، اس لیے یہ ہسپانوی بڑا نقصان آسانی سے کر سکتے تھے۔ گورے کے سینے، پیٹھ اور ہاتھوں پر زخم آئے ہیں۔ مرچوں کے چھڑکاؤ نے حملہ آوروں کی آنکھوں اور جلد کو بری طرح جلا دیا ہے، لیکن وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اپنے گینگ جنوبی میکسیکن کے لیے۔ آفیسرز کا اندازہ ہے کہ سلیناز جیل میں آنے والے 70% قیدی باہر کسی نہ کسی گینگ سے تعلق رکھتے ہیں۔ جیل کے اندر وہ اس معاملے میں اور بھی آگے بڑھ جاتے ہیں، اسی نسل کے گینگ والوں کے ساتھ مل جاتے ہیں اور ایک بڑی مضبوط سپاہ بنا لیتے ہیں۔ یہ گینگ اپنی تشدد پسندی میں بہت شیطان ہوتے ہیں۔ آفیسرز کو ہر سال تقریباً 200 مرتبہ ان سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ آج کا یہ حملہ سی یارڈ میں ہوا۔ یہ ان گینگ والوں کا بڑا میدان جنگ ہے۔ یہ لیفٹیننٹ جوزف سیلیا کی کمان میں ہے۔ یہ بہت ہی پرتشدد یارڈ ہے۔ میرا خیال ہے کہ کیلیفورنیا کی سب سے خطرناک یارڈ ہے۔ سلیناز میں 4 یارڈ ہیں، اے، بی، سی اور ڈی، لیکن سی سب سے زیادہ پرتشدد ہے۔ اس کے گرد کمروں میں لیول 3 اور 4 کے خطرناک قیدی رہتے ہیں۔ دونوں انتہائی سخت پہرے میں ہیں۔ ان دونوں خطرناک مجرموں کے ملاپ سے ان کو ایسی افرادی قوت مل جاتی ہے جو ان کے بدلے کی جنگ کے لیے کافی ہے۔ لیول 4 پر جرنل ہوتے ہیں جو کوٹریوں کے بلاک کے اوپر سے فائر کا حکم دیتے ہیں۔ لیول 3 والے زمین پر سپاہیوں کا پیدل دستہ ہوتا ہے جو ان کے حکم کی تعمیل کرتا ہے۔ اس وقت تمام جرنل اور سپاہی زمین پر ہیں۔ آفیسرز نے حملہ ہونے کے چند سیکنڈ بعد ہی ان کو نیچے آنے کا حکم دے دیا تھا۔ تشدد یہاں کا روزانہ کا معمول ہے، مگر آج کا حملہ مختلف ہے۔ کیمرے کی طرف دیکھو۔ جنوبی میکسیکن قیدی رنگین پٹی کے دوسری طرف ہیں اور نیچے گورے۔ زخمی کرنے والا یہ حملہ اس بات کی تازہ نشانی ہے کہ گورے اور جنوبی میکسیکن اب جنگ کے لیے آمنے سامنے ہیں۔ عملے نے پچھلے ہفتے قیدیوں سے 6 ہتھیار دریافت کیے تھے۔ آفیسرز کو شبہ ہے کہ وہ کسی بڑی جنگ کے لیے اسلحہ جمع کر رہے ہیں۔ کیا تمام جنوبی میکسیکن اب گوروں کے ساتھ نبرد آزما ہونے جا رہے ہیں؟ ہم یہ نہیں جانتے۔ تو کیا تمام گورے اب تمام جنوبی میکسیکن پر جوابی حملہ کریں گے؟ ہم یہ بھی نہیں جانتے۔ ہم یہ نہیں جانتے کہ کیا یہ بات آگے بڑھے گی۔ ہم نہیں جانتے کہ آیا ان کو الگ الگ کیا جا رہا ہے۔ آفیسرز بطور انسان مختلف گینگز کے درمیان الگ حیثیت رکھتے ہیں۔ قیدیوں کو 5 نسلی گروپ میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: جنوبی میکسیکن، شمالی میکسیکن، گورے، کالے اور دوسرے جن میں ایشیائی اور امریکن شامل ہیں۔ ٹریک پر چلے، اپنے اپنے کمروں میں جائیں۔ سیوا نے پورٹ گھاس کے اوپر سے نہ چلے۔ آفیسرز کالو، شمالی ہسپانوی اور دوسروں کو بغیر تلاشی کے یارڈ سے جانے کی اجازت دے دیتے ہیں۔
लेकिन अमला उन गैंग के आदमियों के बारे में बहुत ज्यादा मोहतात है जिनके बारे में वो बहुत ज्यादा फिक्रमंद है, यानी गोरे और जनूबी मैक्सिकन। ऑफिसर्स असलाह की तलाशी के लिए उनमें से हर एक की हाथ से तलाशी लेते हैं। हिलो मत, साकित रहो। कैदी सैनिक नामी चाकू को जमीन में, अपने कपड़ों में या अपने जिस्म में छुपा लेते हैं। अपना मुंह दूसरी तरफ करो। ऑफिसर तमाम कैदियों को बेड़ियां डाल देता है और फिर उनको कमरे तक पहुंचाता है। सबसे ज्यादा खतरनाक कैदियों को लेवल 4 में रखा गया है। ये सी सेल लॉक में रहते हैं। इन दरवाजों के पीछे वाले मुजरिमों में गैंग लीडर्स शामिल हैं। उनको जर्नल कहा जाता है और ये हमला करने, फसाद फैलाने और यहाँ तक के कत्ल का हुक्म देते हैं। आज एक जनूबी मैक्सिकन जर्नल ने वॉर करने का हुक्म दिया था। ऑफिसर रिचर्ड ये जानना चाहता है कि वो कौन था और इस मुख्तसर जंग में बड़ा और असल किरदार किसका था, ताकि वो अगली जंग रोक सकने के काबिल हो जाए। हर एक की हिफाजत के लिए जरूरी है कि गोरो और जनूबी मैक्सिकन को काबू में रखा जाए। मेरा सबसे बड़ा डर अमले पर हमले का खतरा है। यार्ड पर कंट्रोल रखना सबसे जरूरी है। लेकिन इस जेल में एक और जगह भी है जहां मामला काबू से बाहर होने का खतरा है। यह है सी जिम। इसको एक जुज़वी सोने के कमरे में तब्दील किया जा रहा है। सेलिनास शदीद तौर पर गुंजान है, जिसमें गुंजाइश से 500 ज्यादा कैदी हैं। इनमें से 120 जिम में रहते हैं। ये 3 मंजिला है, जहां कमरों को अलग करने के लिए कोई दीवार भी नहीं है। इस तरह की भीड़ की हालत ग्रुप्स में खिंचाव पैदा कर देती है और इनकी तादाद बराबरी से कहीं कम है। जनूबी मैक्सिकन 63 की तादाद में सबसे ज्यादा हैं। इनमें 20 शुमाली हिस्पानवी, 13 काले, 14 दूसरे और गोरे सिर्फ 9 हैं। सिर्फ एक चीज जो उनको एक दूसरे से अलहदा करती है वो गैंग और नस्ली ताल्लुक है। ये एक जंगल है और यहाँ जंगल का कानून चलता है और आपको इसी तरह रहना है। ट्रेवर सेवर्नॉफ और जॉन बेरी पिछले 6 माह से सी जिम में गोरो के साथ बचकर रह रहे हैं। दोनों के अब चंद साल रह गए हैं। बेरी एक गैस स्टेशन पर गन पॉइंट पर डकैती के जुर्म में यहाँ कैद है और ट्रेविस एक आछी हथियार से हमला करने के जुर्म में। अगर वो जनूबी मैक्सिकन के साथ जंग खत्म कर दें तो वो जल्दी रिहा हो सकते हैं, मगर उनको अपने गैंग के उसूलों पर चलना होगा। गोरो का जिम के दरमियान में 3 खानों पर कब्जा है। जनूबी मैक्सिकन इनके इर्द गिर्द हैं। दूसरे 3 ग्रुप शुमाली हिस्पानवी, काले और दूसरे जिम के मुखालिफ सिमत में रहते हैं। अक्सर कैदियों को बाथरूम जाने के लिए, टीवी देखने के लिए या यार्ड में जाने के लिए जनूबी मैक्सिकन की हदूद से गुजरना होता है। सेलिनास की दूसरी जानिब नए कैदियों से भरी एक बस इधर आ रही है। उसके बोर्ड पर 10 आदमी हैं और वो भी लेवल 4 के, सिवाय एक के। ब्राउन, बाहर आ जाओ। 2 ऑफिसर नए कैदी को सी यार्ड तक ले जाते हैं, जो कैलिफोर्निया सेलिनास वैली की सरकारी जेल का हिस्सा है। उन दीवारों के पीछे जनूबी मैक्सिकन और गोरो के दरमियान मुकाबले की जंग छिड़ने को है।
तुम इधर जाओ। ब्राउन अपने कमरे में जाता है जो जिम को बदलकर बनाया गया है। कैसा लग रहा है? घर याद आया? ओके, ठीक है, सही। ब्राउन का सफेद जंप सूट बता रहा है कि वो यहाँ नया है। मैं तो बस देखने आया हूँ। वो चेहरों के समंदर में एक ही बात तलाश कर रहा है, दूसरे कालों की। मेरे लोग कहाँ हैं? वो जानता है कि उसके लिए सबसे महफूज जगह अपनों के साथ रहना है। सीधा इस तरफ को। ब्राउन पिछले कोने की तरफ जाता है और अपने खाने की तरफ बढ़ता है। क्या कुछ हो रहा है? घर याद आ रहा है? उसको एक मैट्रेस और अपनी जाती चीजों का एक बैग और चंद कागज दिए जाते हैं, लेकिन वो 119 दूसरे मुजरिमों के साथ सोने की तवक्को नहीं कर रहा था। कालो का ग्रुप जो गलियों में दो मुख्तलिफ गैंग्स के साथ रहता है, जेल के बाहर वो एक दूसरे के दुश्मन होंगे, लेकिन नस्ली जंग के साथ ये बात ज्यादा बढ़ रही थी कि उनका तहफ्फुज एक साथ मिलकर रहने में है। ब्राउन को जल्द ही इस दायरे में शामिल कर लिया गया। क्या उन्होंने तुमको पहले ही कुछ पैंट्स दिए हैं? नहीं। कैन, पैंट्स कहाँ हैं? कैन, कहाँ है पैंट्स? महफूज रहने के लिए काले सबसे ज्यादा बढ़तर ग्रुप जनूबी मैक्सिकन का सामना करने से गुरेज करते हैं। इस खतरनाक गैंग के बड़े सख्त कवानीन हैं। उनके दरमियान कोई छुप कर भी बात नहीं करता। ऑस्कर को शुबा था कि आज कहीं जंग शुरू ना हो जाए, क्योंकि गोरों ने जनूबी मैक्सिकन के उसूलों को तोड़ा था। जनूबी सिंध वालों के तहत चलने वाली हर यार्ड, उसमें गोरों को हमारे हुक्म की तामील करनी चाहिए। हमारे पास लोग भी हैं और हथियार भी। क्रिस ब्राउन को ये नहीं मालूम कि अभी जनूबी मैक्सिकन वाले राज कर रहे हैं, मगर वो मशहूर शराबी डीलर का पक्का दोस्त बन गया था। उसका नाम फिलिप वॉर्न और तखल्लुस लुसियाना था। सबसे अहम उसूल, जनूबी मैक्सिकन के खाने के इलाकों से कभी ना गुजरो। अगर ब्राउन ऐसा करता है तो वो लोग उसे मार सकते हैं। दूसरी मेज बिल्कुल इस जगह पर है। ये दूसरे का इलाका है और ये है हमारा इलाका, समझे? और वो जगह जिससे लुसियानो को खौफ आता है वो है सी यार्ड। वो बाहर जाने से इनकार कर देता है। हमारा यार्ड वो रहा उस तरफ, हम उस यार्ड में से गुजर सकते हैं, फिर भी मैं बस उधर नहीं जाता। वो एक यार्ड है और ये 2 यार्ड। एक यार्ड में खलल नहीं डालते? नहीं, मैं एक शरीफ आदमी हूँ। आगे बढ़ने की ये जंग किसी वक्त भी एक तशद्दुद की शक्ल में फैल सकती है और फिर लुसियाना को जबरदस्ती लड़ना होगा, और अगर वो लड़ता है तो जेल में उसकी कैद में 3 महीने का इजाफा हो जाएगा। अपने खाने में वापस जाकर ब्राउन ये मानता है कि वो 119 कैदियों के साथ रहकर ज्यादा जज्बाती हो गया है। मैं अपने सेल में जाते वक्त गिनता रहता हूँ। सेल बहरहाल अच्छा है, आपको दूसरों के साथ उलझने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ एक ही शख्स हूँ। लेकिन लुसियाना उनको एक बात बताना भूल गया। ब्राउन को अपनी नस्ल वालों के साथ भी मोहतात रहना होगा। हर गैंग की तरह काले कैदियों में भी हुक्म चलाने की खासियत है, और लुसियाना तो जैसे सबसे नीचे है। ब्राउन के खाने का साथी टीको मैक, जो हॉलिडे के साथ होता है, सबसे ऊपर के दर्जे पर है, और वो ब्राउन के नए दोस्त को मंजूर नहीं करता। अब तुमको एक छोटा दोस्त मिल गया है, वो हर जगह तुम्हारे पीछे पीछे होगा जहाँ जहाँ तुम जाओगे। मैं तुमको खबरदार करने की कोशिश करता हूँ। रुको, कुछ इस तरह की चीज मैं भी बताना चाहता हूँ मेरे बच्चे। तुम उसे जानते हो? किसको? जोडी। किसको? मेरा ख्याल था तुम सब बेहतरीन दोस्त हो। नहीं, अब मुझे अपनी पसंद का साथी मिल गया है। पता है, जैसा बनना वैसा सलूक। हॉलिडे, जो मुसल्ला हमले के जुर्म में 7 साल कैद भुगत रहा है, ब्राउन को पता होना चाहिए कि उसे उन काले कैदियों से जान छुड़ाने के तरीके मालूम है जिनको वो पसंद नहीं करता। तुमने देखा मेरे खाने के दूसरे साथी चले गए हैं। हाँ? ठीक। हाँ। तुमने नोट किया, वो उनकी कमी महसूस कर रहा है। वो यहाँ अकेला ही है, बेकार। ओ यार, ये जगह घिसपिच हो गई है। ब्राउन ने आखिरकार ये समझ लिया कि उसका ये नया घर कितना खतरनाक है। तो जैसा है यही है, मुझे यहाँ से निकलने तक इसका ध्यान रखना होगा। ये है इसका हल यार। उम्मीद है हर चीज ठीक ही रहेगी, उम्मीद है। सी जिम के बाहर यार्ड खाली है। कैदियों को 3 दिन के लिए अंदर रखा गया है।
गोरे और जनूबी मैक्सिकन पुरअमन हैं। और चौथे दिन जेल कैदियों को पीछे से बाहर की तरफ आने की इजाजत देती है, लेकिन जैसे ही वो बाहर आते हैं एक अलार्म की चीख गूंजी। ये सी यार्ड के हिस्से से आई है। कैलिफोर्निया सेलिनास वैली की सरकारी जेल में कोड 2 की इमरजेंसी हो गई है। उनकी दूसरे दर्जे की हाई अलर्ट की कैफियत है। ऑफिसर्स सी ब्लॉक की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो वो खत्म हो चुकी थी। 2 गोरे अपनी कोठरियों के बाहर रास्ते जनूबी मैक्सिकन पर कूद गए थे। उन्होंने कोठरियों का दरवाजा खुलते ही हमला कर दिया था और कैदी सी यार्ड की तरफ जा रहे थे। ये गोरों के लिए पिछले हफ्ते के हमले का बदला लेने का सुनहरी मौका था। गोरे जनरल साफ पैगाम दे रहे हैं, वो किसी भी मौके पर लड़ेंगे। उसका मतलब है कि सेलिनास वैली की सरकारी जेल में नस्ल की जंग तैयार है। ऑफिसर्स अब जान गए हैं कि हाल ही में 2 नस्ल के लोगों में होने वाली लड़ाइयां एक दूसरे से मुंसलिक हैं। जंग नए कैदी क्रिस ब्राउन को परेशान कर देती है। वो माहौल से आशना होना चाहता है। वो सिर्फ कानों सुनी पर ही बात करता है। जब मैं पहली बार जिम गया मैंने सोचा ये बहुत मुनासिब होगी। पता है मेरा क्या मतलब है? मेरा ख्याल था ये बहुत खूबसूरत जगह होगी यार। वहां से हर चीज बदल गई। तालाबंदी ने क्रिस ब्राउन को अपने खाने की हद तक महदूद कर दिया। वो दिन में सिर्फ 3 मरतबा खाने और 1 दफा नहाने के लिए बाहर निकलता है। ये हफ्ता बड़ा खौफनाक था यार। बस सो जाओ या पढ़ते रहो। ये किसी लिहाज से अच्छा नहीं था। ब्राउन का जंग के बारे में कोई खास तसव्वुर नहीं था। अगर कोई चीज उसने सीखी थी तो ये कि गैंग की सियासत पर बात करना सख्ती से हद की खिलाफ वर्जी था। यार्ड में जो भी होता है यार्ड तक ही रहता है। तुम्हें पता है मेरा मतलब क्या है? यहाँ इसी तरह होता है। जेल में ऐसा ही होता है यार। उसके दिमाग में ऊंची बातें आती थीं। अपने थोड़े से वक्त में उसने शदीद गलतियां की। मुझे कुछ नहीं करना चाहिए था जो मैंने पहले नहीं किया था। पता है मेरा क्या मतलब है? इत्तेफाक से जुनूब वालों के इलाके में चला गया था। पता है मेरे लोगों ने मुझसे इसके बारे में कहा। काले कैदियों को जनूबी मैक्सिकन से माफी मांगनी पड़ी। काले ग्रुप वालों के लिए जो बात झुकने का सबब बनी वो ये नागवार वाकया था। अगर ब्राउन दोबारा उलझता है तो उसकी अपनी नस्ल उस पर गुस्सा करेगी। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने अपने ही एक साथी को अपने से जबरदस्ती बाहर कर दिया। लुसियाना जा चुका है। दूसरे काले कैदियों ने उसे इतनी चोटें लगाई कि उसने खुद को हिफाजत में रखने की दरख्वास्त की। उससे दूसरे साथी कैदियों को शर्मिंदगी हुई। वो अपनी कोठरी से निकलने से इनकारी है और हॉलिडे नहीं कह सकता कि असल में क्या हुआ। लुसियाना के पास बंदा बनने के लिए बहुत से मौके थे। वो आगे नहीं बढ़ सकता था, इसलिए उसे सीधा साधा रहना था। हॉलिडे चाहता था कि उसके साथी काले अपने इर्द गिर्द के माहौल को संजीदगी से लें। तुम्हें इस बारे में कुछ कहना है? खास तौर पर जंग के दौरान। यहाँ पर वाकई कोई तफरी नहीं है। कोई ऐसा बंदा लतीफा सुना देता है और सब हंसते रहते हैं, लेकिन चलते फिरते हंसी मजाक कह के पागलों की तरह। आप ये नहीं कर सकते यार। तुम्हारे साथ कुछ होने वाला है, ये मैं रोक सकता हूँ। साले का सर तोड़ो यार। ब्राउन कहता है कि वो लड़ने के लिए तैयार है। हम दोनों के पास डंडे हैं, हमें यही करना चाहिए। अगर हम 3 ही हों और अगर ऐसा ही होना है तो ऐसा ही होगा। मगर हम सिपाही, हम अभी बाहर जा रहे हैं। तुम्हें पता है मेरा क्या मतलब है? लेकिन सी जिम के सिपाही एक और ताकतवर ग्रुप के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। जेल के गैंग की तफ्तीश करने वाला यूनिट ऑफिसर रेनोसो उनकी रहनुमाई करता है, जिससे जंग बढ़ने से रुक सकती है। वो एक तालीम याफ्ता और ऊंचे ओहदे पर फाइज है। 2 कमरों में गैंग मेंबर्स जंग करने वालों के लिए हथियार बना रहे होंगे। एक कोठरी सफेद है। पहला निशाना कैदी स्मिथ होगा। दूसरा जनूबी मैक्सिकन। टीम छापा मारने की तैयारी के लिए जमा है। चलने के लिए तैयार हो जाओ। कैदी बिफर सकते हैं और अफसरों के खिलाफ हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये बेहतरीन मौका है कि टीम अगली जंग को रोक ले।
वो 5 घंटे में जाएंगे। सूरज निकलने से पहले गैंग की तफ्तीश करने वाली टीम कैलिफोर्निया के सिलिनास वैली की सरकारी जेल में सी ब्लॉक के बाहर जमा हो गई। वो गोरो और जनूबी मैक्सिकन कैदियों को अचानक पहुंचकर पकड़ना चाहते हैं, इससे पहले कि वो हथियार या मंशियात को कहीं फेंक दें। वो जनूबी मैक्सिकन सेल ब्लॉक में दाखिल हो गए हैं। सबसे ऊपर के खाने पर। लेकिन कैदियों ने उनके आने की चाप सुन ली है। उस पर टूट पड़ो, वो फ्लश में बाहर रहा है सब फ्लश में, उस पर टूट पड़ो, जाओ। ऑफिसर्स पानी की सप्लाई काट देते हैं नीचे। और पेपर स्प्रे फेंकते हैं। सेकंडों में कैदी नरम पड़ गए। सेल नंबर 2171 खोलो, सेल नंबर 2171 खोलो। ऑफिसर्स लीसा टॉयलेट का मुआयना करती है, जहां कैदी ममनुआ चीजें बहाना चाहते थे। चीजों में गैंग वॉर के लिखे हुए हुक्मनामे, हथियार या मंशियात हो सकते हैं। जनूबी मैक्सिकन ने हथियार और मंशियात छुपाने के लिए दीवार में जगह बना ली है, लेकिन ऑफिसर्स ने उन्हें उसको भरने से रोक दिया, जो कि वो साबुन के पेस्ट से भरने लगे थे। अगला सेल गोरो के गैंग का है। अभी करो अभी। टीम ने कैदी वाइन स्मिथ और उसके सेल के साथी को बगैर गार्ड के पकड़ लिया। उनके पास हुक्म मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। गैंग यूनिट ऑफिसर स्टैकी हैनले और पॉल रिवीरा ने सेल का सब कुछ बाहर निकाल दिया। उनको मोजे में से एक डंडी मिली। हैनले को शुबा है कि ये कॉफी कप के हैंडल से बनाया गया है। मेरा ख्याल है कि ये असल में सरकार की तरफ से फराहम किए हुए कप का हिस्सा है। ये इस जगह का हिस्सा है। और वो क्या करते हैं कि बॉक्सर के शॉर्ट्स का एक जोड़ा लेते हैं और उसे दरमियान में से काट लेते हैं और तब वो इसको गर्म करके मोड़ के जितना हो सकता है सीधा कर लेते हैं और फिर वो धात पर ज़रब लगाते हैं। उसकी थ्योरी बिल्कुल दुरुस्त है। ये वो कप है जो हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो ये है वो कप जिसके बारे में हमें यकीन है कि वो इससे हथियार बनाते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि वो इसे सिरों से काट लेते हैं, उसको सीधा करते हैं और तब अपने पास से इस पर धात लगाते हैं। फिर ऑफिसर को एक बड़ी चीज मिली, एक कैदी का मोड़ा हुआ कागज जिसे वो पतंग कहते हैं। यह एक तरीका जिससे कैदी एक खाने से दूसरे खाने तक पैगाम पहुंचाते हैं। वो इसे किसी को देते हैं कि वो एक कमरे से दूसरे कमरे या एक बिल्डिंग से दूसरी तक पहुंचा दे। वो कहता है उसे कुछ बदला चुकाने के ख्याल पर भी गौर करना होगा। इस पतंग से गोरो को ये हुक्म मिल सकता है कि वो जनूबी मैक्सिकन पर हमला करें। ऑफिसर हैनले उसके फौरन टुकड़े टुकड़े कर देता है। इसमें कई तरह की मालूमात हो सकती हैं, मंशियात से लेकर हमले के मंसूबे तक। हैनले को पता चला कि ये पतंग एक कैदी की जानिब से सेल की तलाशी लेने वाले वाइन स्मिथ को निशाना बनाकर भेजी गई थी। मैं वाकई कश्मकश में हूँ और इस औजार को इस्तेमाल कर सकती हूँ क्योंकि मैंने पहले ही उनसे कहने का वादा किया है। राइटर स्मिथ से हथियार के बदले मंशियात का वादा करता है। उसका मतलब है कि मजीद गोरे भी मुसल्लाह होंगे और स्मिथ और बाअसर गोरे गैंग मेंबर्स ये नहीं बताएंगे कि कौन है। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं कहना है। स्मिथ 20 साल से काम कर रहा है, जिसमें 8 मुसल्लह डकैतियां शामिल हैं। उसको एक 3x3 फीट के धाती पिंजरे में सवाल जवाब के लिए पकड़ा गया है। स्मिथ का सी ब्लॉक में तकरीबन 1 साल हो गया है और ताले में तकरीबन 2 हफ्ते। इस फारिग वक्त ने उसे एक हद तक पहुंचा दिया था। 6 महीने तक ऐसा ही रहा। साल के 8 महीने तो जैसे 18 महीने हो गए और 18 महीने पता नहीं इतने अरसे बेकारी में कैसे होते हैं। पैदल सिपाहियों ने सेल पर छापे के बारे में सुना और उन्हें पता चला कि जिम में पहले ही हथियार मौजूद हैं। वो जाल में आ गए और अपने 5x6 फुट के महदूद खाने में बंद हो गए। जैसे कि आप देख सकते हो हम खानों के पास हैं। हम इस कफन जैसी जगह पर महदूद हैं। उस जगह सुस्त आदमियों का काम नहीं है। तुम अगर खाली हाथ बैठे हो तो तुम काम के बारे में सोचना शुरू कर दोगे।
अगर तुम सोचना शुरू करोगे तो तुम्हारा दिमाग तुमको पागल कर देगा। जॉन बैरी और ट्रेवस को ये फिक्र है कि अगली जंग उनको भी मुलविस कर लेगी। इस जिम में हर एक की एक तारीख है। चंद महीने एक घर में, 1 साल या 2 साल, जबकि यार्ड में लोग उम्र कैद वाले हैं। वो कभी घर नहीं जाएंगे और यही उनकी दुनिया है। ये हमारी दुनिया नहीं है, हम तो बस मेहमान हैं। अगर वो गोरों के लिए लड़ते हैं तो उनकी कैद की मुद्दत बढ़ा दी जाती है, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो वो गोरों का साथ देते हैं तो उन पर हमला हो जाता है या उनको मारा जाता है। हमें असल में दुआ करनी चाहिए और उम्मीद रखनी चाहिए कि आज और कल कुछ नहीं होगा और हम इस जेल में रहेंगे। ओके, आज जिम की तलाशी पर मुख्तसर बात होगी। लेफ्टिनेंट जोसेफ सीलिया और उसके अफसर जानते हैं कि जिम बस फट पड़ने वाला है। अगर कैदियों के पास असलहा है तो अफसरों को वो जल्द बरामद कर लेना चाहिए। जोसेफ का मंसूबा है कि जिम के हर इंच की तलाशी ली जाए, लेकिन कैदी तादाद में ऑफिसर से 1 के मुकाबले में 6 है। होशियार रहो, वो लोग सेल में नहीं है बल्कि इधर उधर चल फिर रहे हैं, इसलिए बहुत मोहतात रहने की जरूरत है। हम उनको यार्ड पर ले जा रहे हैं, उन्हें बंदूक की नोक पर रखो और तब हम मैच में जाएंगे और उस जिम की तलाशी लेंगे और उसे साफ कर देंगे। रिचर्ड वैंसो और 20 ऑफिसर सुबह 6 बजे जिम में दाखिल हुए। अपने खानों से बाहर निकलो। उन्होंने तेज लहजे में जगाया। क्रिस ब्राउन समेत तकरीबन तमाम कैदी अभी सो रहे हैं। कम वक्तों ने हमें नींद से उठा दिया, ये क्या किया? बाहर निकलो। ऑफिसर्स ने कैदियों को कपड़े उतारने का हुक्म दिया। उन्होंने हर कपड़ा चेक किया, खास तौर पर कमर की पेटी, एक आम जगह जहां कैदी हथियार छुपाते हैं। अमले ने तमाम 120 कैदियों को क्लियर करार दिया और उनकी लाइनें बनाई। अगले 2 घंटे तक वो यहीं रहेंगे। यहाँ हमलों और आपस के झगड़ों के कई वाकयात हुए हैं। हमें लोगों की तरफ से हिफाजत देने की दरखास्तें मिली हैं, और जब वो हिफाजत की दरखास्त करते हैं तो ये बताते हैं कि असला कहाँ छुपा हुआ है। तो एक वजह यह भी है कि हम जिम की तलाशी ले रहे हैं। ऑफिसर्स इन जगहों को निशाना बनाते हैं जहां से कुछ मिलने का इम्कान होता है। उन्होंने 3 छोटे हथियार बरामद किए जो टूथब्रश, कॉफी मग और खानों के टूटे हुए हिस्सों से बनाए गए थे। उनमें से कोई भी किसी कैदी या अफसर को कत्ल कर सकता था। क्रिस ब्राउन के खाने का इलाका साफ है, लेकिन जैसे ही कैदी जिम में दाखिल हुए, एक ऑफिसर को उसके कपड़ों में कुछ गैर मामूली नजर आया और उसने उसे वापस बाहर बुला लिया। ब्राउन यहाँ आओ। तुमने स्वेटर पहन रखी है ना? ये मसला है। ब्राउन ने इजाफी कपड़े पहने हुए थे। तुम जानते हो कि लोग स्वेटर पहनकर क्यों बाहर आते हैं? नहीं जानते। मैं कोई असला छुपाने की कोशिश नहीं कर रहा यार, मगर हमें ये ऐसा ही लगता है। ओ, इसीलिए तुम सारे मुझ पर चढ़ दौड़े। हम तुमसे सिर्फ कपड़े उतारने को कहते हैं क्योंकि हमें पता नहीं कि उनके नीचे क्या है, ठीक है? आज दिन में दूसरी दफा उसको कैदियों के सामने बिल्कुल बरहना होना पड़ा। ब्राउन ने कहा यह एक मासूमाना हरकत थी, लेकिन कैदियों के ये इजाफी कपड़े उनको लड़ाई या हंगामे में हिफाजत देते हैं। वो उसे अपना मुहाफिज कहते हैं। ऑफिसर उसकी इजाजत नहीं देते। बैठो, 3 दफा खांसो, अपना जिस्म फैलाओ। उसे क्लियर कर दिया गया और उसे तंबीह की गई। जब बाहर आओ तो स्वेटर पहन के माता ना, ओके? लेकिन वो भी गुस्से में है। ये अच्छा नहीं है। तुम इस बंदे की जो तुम सबकी करता है। ठंडे रहो, मैं तो इसकी ऐसा नहीं, किसी के साथ भी, लेकिन इसकी मैं अपने खाने में वापस आकर याद करता है कि उसके साथ क्या हुआ। वो सोचता है कि अफसर ने उसकी बेइज्जती की है, एक कैदी की बेइज्जती। जहन्नुम में जाए, जो कुछ बाहर हुआ यार, इस गधे ने मुझे बिल्कुल ही बरहना कर दिया। अरे यार, हम इस बेहुदगी से पहले गुजर चुके हैं। जब वो अपना किस्सा सुनाने लगा तो ब्राउन के गिर्द और कैदी जमा हो गए और वो ऑफिसर्स को बुरा भला कहने लगे।
मैं इस पर इसकी ऐसी की तैसी कर देता हूँ यार। वो उसकी तरफदारी करते हैं और उससे बात करते हैं। इसके बारे में सोचो और फिर कोई समझदारी का फैसला करो। एक मंसूबा बनाओ, एक सोचा समझा मंसूबा। गोरो और जनूबी मैक्सिकन के दरमियान मुकाबले की जंग से गुरेज के लिए काले कैदियों को ब्राउन को गुस्से में आने से रोकना चाहिए। क्रिस तो पागल ही है, क्या किसी ने नहीं देखा? तुमको मोहतात होना चाहिए यार, वो साला यहाँ किसी वजह से ही है। आखिर वो उसे ठंडा कर देते हैं। लगता है ब्राउन की पेशरफ्त मुकम्मल हो गई है। वो अब सिलिनास वैली की सरकारी जेल को भी समझ गया है और ये भी कि उन्हें बचने के लिए क्या करना है। अगर अब वो बरी हो जाता है और उस सीईओ के साथ कुछ करता है तो उसे फिर पकड़ लिया जाएगा और वो कभी जेल से नहीं निकल सकेगा। ऐसा हर जगह होता है, खास तौर पर सिलिनास में और खुसूसन सिलिनास वैली में। लेकिन आज सारी रात कैदी मुकाबले की रेस में शामिल होने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि जंग बस होने ही वाली है। जैसे ही कैलिफोर्निया वैली की सरकारी जेल में रात होती है, जिम देखने में नॉर्मल लगता है। कैदी पढ़ रहे हैं, मौसीकी सुन रहे हैं और टेलीविजन देख रहे हैं। लेकिन जैसे ही हमारे कैमरे हट जाते हैं, ये सब खत्म हो जाता है। ठीक 8 बजे जैसे ही 4 गोरे अपना पसंदीदा प्रिजन ब्रेक का प्रीमियर शो देखने के लिए जमा होते हैं, 20 जनूबी मैक्सिकन अपने खानों से निकलते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। दूसरे गोरे इस हंगामे को देखते ही बाहर उनकी मदद को आ जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ कुछ मुक्के ही मार सकते हैं और उनको मारकर बेहोश कर दिया जाता है। जनूबी मैक्सिकन मुसल्ला है और उनके पास सख्त छोटे हथियार और बेड़ियां हैं जो उन्होंने अपने मोज़ों में छुपाई थीं। अब गोरों के खाने खाली हो गए। अपनी हिफाजत के लिए वो अलहदा इंतजामी हिस्से में चले गए हैं, जिसे काल कोठरी कहा जाता है। सिलिनास वैली का सबसे महफूज यूनिट है, जहां कैदी दिन में 23 घंटे अपने कमरे में ताले के साथ बंद रहते हैं। गोरों के हथकड़ियां लगी होती हैं। वो जहां भी जाएं और उन्हें लोहे के पिंजरे के अंदर से ही हमसे बात करने की इजाजत होती है। जॉन बेरी को हंगामे की कुछ चीजें ही याद हैं। मैंने कलाइयों के टूटने की आवाज सुनी। मैंने बाहर देखा कि ये हमारे और जुनूब की तरफ वालों के दरमियान झगड़ा हो रहा था और फिर भागकर वहां गया और उनकी मदद करने में शामिल हो गया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा थे और हम बहुत कम। मैंने जितना हो सका उनकी मदद की कोशिश की। सारे 9 गोरे कैदी बुरी तरह पिटे। मेरी आंख जख्मी हो गई, मेरे सर पर गोमड़े पड़ गए और मेरी पीठ पर 2 जबरदस्त मुक्के पड़े। मेरी पसलियों की वजह से मेरे फेफड़े बच गए। मुझे सर पर किसी की ज़रब लगी। मुझे नहीं पता वो क्या थी। मुझे याद है मैं गिर पड़ा। ये था सारा कुछ जो मुझे याद था। उसके बाद मेरी आंख अस्पताल में खुली। मेरी पीठ पर इस जगह कुछ मुक्कों के जख्म लगे हैं। हंगामे ने ट्रेविस को इस कदर डरा दिया कि वो कैमरे के सामने नहीं आया। ऑफिसर को शुबा है कि जनूबी मैक्सिकन जर्नलों ने एक पतंग के जरिए हमले का हुक्म दिया। उनको यकीन है कि कैफेटेरिया के एक काम करने वाले ने जिम के सिपाहियों को ये पैगाम हंगामे से कुछ देर पहले पहुंचाया था। ये सिर्फ 2 मिनट जारी रहा, लेकिन 2 मिनट भी बहुत हैं अगर आप पर हमला। हंगामा बहुत पुरजोश था, लेकिन मुख्तसर रहा। ऑफिसर्स का ख्याल है कि जनूबी मैक्सिकन ने उसे इसी तरह प्लान किया था। उन्होंने मेन दरवाजे के नजदीक हमला किया, ये समझकर कि अमला फौरी जवाबी कार्रवाई करेगा, उससे पहले कि और जनूबी मैक्सिकन उसमें शामिल हो जाएं। इस सारे हंगामे में जनूबी मैक्सिकन के गैंग के सिर्फ 1/3 जद में आए और उनकी गोरों पर बरतरी कायम रही और गोरे बाहर हो गए। मैं नहीं समझता कि हम में से कोई निशाना करता। मेरा ख्याल है ये सिर्फ गोरों से जान छुड़ाने का तरीका था। बैरी कहता है गोरों को अपना तहफ्फुज़ करना चाहिए था। मैं लोगों से कोई वास्ता नहीं रखता जब तक ऐसा करना कतई जरूरी हो। 6 साल तक एक साथ रहते हुए ये मेरा लड़ाई का पहला मौका है। उसको सबसे ज्यादा नुकसान इस बात का पहुंचा जो उसके लिए बहुत अहम थी कि उसकी कैद की मुद्दत में इजाफा हो गया। जेल ने बैरी की कैद की मुद्दत में 3 महीने का इजाफा कर दिया। मुमकिन है उसे और एवानोफ को दूसरी जेल में मुंतकिल कर दिया जाए। उन्हें सिलिनास में रखना बहुत खतरनाक है। यहाँ वो जब तक रहेंगे उन्हें दोबारा लड़ना ही पड़ेगा।
बेहतरीन बात तो यह है कि किसी दूसरे मुल्क में भेज दिया जाए। बाज दफा हम बड़े मुल्क होते हैं और कभी छोटे, और हर मुल्क को जंग करना होती है। जिम में काले गैंग की नीचे रहने की हिकमत अमली ने उन्हें फायदा पहुंचाया। उन्होंने हिफाजत के साथ एक तरफ रहने का तरीका इख्तियार किया। हम यहाँ हैं, हमने यहाँ से पूरा वाकया देखा। गोरे लोग अब जा चुके हैं। इस वक्त ये गालिबन उनकी हिफाजत के लिए बेहतरीन है। यार वो यहाँ नहीं रह सकते जब तक वो साला यहाँ पर है। ये रुकने वाला सिलसिला नहीं है, इसलिए या तो उनको यहाँ से बाहर भेज दिया जाए या उनके खानदान वालों को नोटिस भिजवाएं। पता है मेरा मतलब है, क्योंकि वो सब यहाँ दफन हो जाएंगे। क्रिस ब्राउन के लिए ये हंगामा एक आंख खोलने का तजुर्बा था कि वो कहाँ रहता है और किन के साथ रहता है। अब से उसको पता चल गया कि किस तरह उनमें रहना है। मेरे सिर्फ 4 महीने रह गए हैं। मैं यहाँ से निकल सकता हूँ, अपने घर जा सकता हूँ। हंगामे ने ऑफिसर्स के लिए साबित कर दिया है कि अभी जंग का आगाज है। गैंग जनरल अब पूरी तरह फौज बुलाना चाहते हैं। इस हद से भरे हुए दिया सलाई के मसाले के बॉक्स में एक चिंगारी शोला बन चुकी है। सारे अमले को मिलकर अब इस तशद्दुद को रोकने की कोशिश करनी है। वो तलाश जारी रखेंगे। हम तलाश कभी नहीं छोड़ेंगे। हम रोजाना तलाश करेंगे। हम तलाश हरगिज नहीं छोड़ेंगे। जनरल मंसूबे बनाते रहेंगे। ये कितना बड़ा सिलसिला है मुझे नहीं पता, लेकिन ये बढ़ रहा है। गोरे नीचे आने पर तैयार नहीं है और जनूब वाले ऐसा करते रहेंगे तो ये सिर्फ आगाज है। और सिपाही लड़ते रहेंगे। बिल्कुल एक जंग की तरह। यहाँ जनरल की कमान वाले ट्रूप हैं। यह तरीका है जिस पर यह काम होता है। क्योंकि सलिनाज वैली की सरकारी जेल में तशद्दुद कभी खत्म होने वाला नहीं।